Hello, friends. I welcome you all in this new reading session of Tarot Divine Guidance. We will quickly see what is God's message for you right now. It's a general reading, so some things may resonate with you, some things may not resonate with you. Keep those things for yourself that you feel that you find resonating with you, and let other things go for others. And it's a timeless reading, so whenever it will reach you, the first thing that all the listeners who will have a message in it for them, they will definitely reach this recording. And whenever they will reach this recording, it will start resonating with them from then only. I'm shuffling the cards, so I'll just quickly take out all the cards and let's see what is God's message for now. I hope you all had great Diwali yesterday. Some people are still having Diwali, you know. You can hear the sound of crackers. Yesterday it was, it felt like it is endless. The way people were they were burning crackers. It felt that it's going to be endless. Till I think 2 a.m., 3 a.m. at night. 3 a.m. is actually morning. So till then people were busy doing this. It was very sadly surprising for me. Because we all know that crackers are not good for the environment, and then it causes difficulty later when air becomes polluted, then we only face trouble in breathing, and everyone understands this. Anyways, coming back to the reading, actually I'm shuffling the cards. I'll take out the cards quickly. So friends, it is a general reading, so if you have any, if you want answer for any particular question that is in your mind, then you can contact me for a personalized reading. I have given my email ID in the description box, so you can contact me in case you need a personalized reading, and I would be happy to get you an answer for your question through my reading. Okay, so I'm taking out the cards now. Okay. The Empress. Wow, the Sun. The Magician. Oh my God. Okay, Two of Pentacles. Knight of Wands, and the bottom of the deck is High Priestess. The High Priestess. Oh my God, there are 4 cards from Major Arcana. My God. Okay, I'll start the reading now. I'll keep the deck aside. I'll see the cards quickly. बहुत बैलेंस करके चलते हैं आप, बहुत बैलेंस करके अपना टाइम अच्छे से मैनेज करके चलते हैं. टाइम मैनेजमेंट के स्किल्स आपकी बहुत अच्छी हैं. आप अपने रिसोर्सेज को अच्छे से मैनेज करके चलते हैं. पूरा बैलेंस में मुझे दिख रहा है, पूरी बैलेंसिंग के साथ आप चलते हैं, और कहते हैं ना काफ़ी संयम से. तो वैसा मैं कुछ देख रही हूँ. आपका जो व्यक्तित्व है वो कुछ ऐसा ही है, और ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है. आपने अपने सभी रिसोर्सेज को बहुत वाइजली आप यूज़ करते हैं, और ऐसा करके ना आपने अपने सभी रिसोर्स को पास्ट में भी आपने बहुत एक बहुत मीनिंगफुल मुझे लगता है कि क्रैकर्स की आवाज़ से थोड़ा सा जो है बहुत लाउड है क्रैकर्स की आवाज़. तो आई होप दैट इट डजंट क्रिएट एनी प्रॉब्लम फॉर यू इन लिसनिंग. तो आई वाज सेइंग कि आपका जो मुझे दिख रहा है व्यक्तित्व वो बहुत बैलेंस करके चलने वाला है. अपने रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से बैलेंस करके चलते हैं. आप अपने टाइम को बहुत अच्छा सा मैनेज करते हैं. टाइम मैनेजमेंट स्किल्स आई कैन सी. वो होते हैं ना लोग
पूरी योजना बना के हर काम करना, इस तरह के आप मुझे व्यक्ति लगते हैं। और इनफैक्ट जो आपके पास जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हों, आप उनको काफ़ी एकदम उसको एकदम तोल के यूज़ करते हैं, एकदम वाइजली, एकदम बैलेंस करके आप चलते हैं, आई मीन टू से। और अभी मीन्स आई एम वेरी ग्लैड टू से दिस कि ये जो 10 सन का कार्ड आया है ना, अभी आपका जो पोजीशन है, मैं कहूँगी जिस लेवल पे अभी आपकी विजडम है, और ये जो समय आपका अभी चल रहा है ना, ये ऐसा समय है कि अगर आप किसी डिफ़िकल्ट टाइम से अगर आप गो थ्रू कर रहे हो, तो ये 10 सन का कार्ड इस बात को सुनिश्चित करता है कि आपकी वो डिफ़िकल्टी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। और 10 सन का कार्ड ये भी बताता है कि अब आपकी लाइफ में जिस तरह से, मतलब ये सन का कार्ड है, जिस तरह से सन है एकदम ब्राइट, तो आपकी लाइफ में भी एकदम ब्राइट सिचुएशंस, आई वुड से अपॉर्चुनिटीज़, ब्राइट सिचुएशंस, जो भी पुराने जो भी दुख तकलीफ़ जो भी आपके रहे होंगे आपकी लाइफ में, वो सब ख़त्म। और आप दूसरों को लाइट देने वाले आप बन रहे हैं, ऑलमोस्ट बन चुके हैं। 10 सन का कार्ड ये भी बताता है कि आपकी अपनी जो विजडम है, आपके अपने जो आपके गुण हैं, आप उनसे दूसरों को भी लाइट दें। और सन के कार्ड का प्रेजेंस का मतलब है कि डार्कनेस कंप्लीटली ओवर, अब लाइफ में कोई अंधकार की सिचुएशन नहीं है, और अगर अभी है तो वो बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है। इसकी अश्योरिटी ये कार्ड कर रहा है 10 सन का कार्ड। और एकदम आप जिस तरह से ये बच्चा है ना, इस कार्ड के अंदर एकदम केयर फ्री होके, टेंशन फ्री होके बस वो चल रहा है आगे, उसी तरीके से आपकी लाइफ होने वाली है कि आप भी एकदम केयर फ्री, आपकी लाइफ में सूर्योदय, एकदम केयर फ्री, कोई चिंता फिक्र कुछ नहीं। और ये जितने भी ये सनफ्लावर्स जो हैं इस कार्ड के अंदर जो खिले, वैसे ही आपकी ज़िंदगी आपकी ज़िंदगी ऐसी ही होने वाली है, एकदम खिली। तो ये बहुत ही अच्छा कार्ड, बहुत पॉजिटिव वाइब्स देता हुआ ये कार्ड है। आई एम ट्राइंग टू स्पीक लाउडर टुडे बिकॉज आई गेस पटाखों की आवाज़ जो है वो मेरी आवाज़ को थोड़ा डिम ना कर दे, बट आई एम ट्राइंग टू बी क्लियर। तो आई वाज सेइंग कि एकदम मतलब डार्कनेस ख़त्म। कोई अगर दुख तकलीफ़ अभी चल रहा है, वो तब उस केस में सन का कार्ड इस बात की सुनिश्चिति कर रहा है, इस बात को अश्योर कर रहा है कि वो दुख तकलीफ़ सब ख़त्म, और आपकी लाइफ में ओनली लाइट ही लाइट होना, प्रकाश ही प्रकाश होना एकदम आपकी ज़िंदगी में। और ये सब ये सब जो ब्राइटनेस में देख रही हूँ ना, ये सब जो चमक है, ये आपने अपने आप को अंदर से मजबूत किया है। ये आपकी इनर स्ट्रेंथ है ना, द मैजिशियन, ये जो कार्ड आया है ना, ये दिखा रहा है कि आपने अपने इनर स्ट्रेंथ पे बहुत काम किया है। और जिस तरह से मैंने अभी बताया कि आप अपने रिसोर्सेज को बहुत बैलेंस करके चलते हैं, आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं आप उनको बहुत बैलेंस करके चलते हैं, आप अपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करके चलते हैं। इस तरह का जो आपका व्यक्तित्व है, वो भी मैंने आपको बताया कि इस तरह का आपका व्यक्तित्व है एक्चुअली। और ये मैजिशियन का कार्ड भी ना, ये यही दिखाता है कि आपने इतना वाइजली अपनी लाइफ में, आप अपनी लाइफ को इतना वाइजली जीते हैं, कभी भी एकदम इस तरह से नहीं रहते। एकदम कभी होता है ना कि आलस के चक्कर में टाइम जाने देते हैं लोग, अरे कर लेंगे, आपका ऐसा वाला नहीं है। आप एकदम अपने आप को डिसिप्लिन में रखते हैं, डिसिप्लिन से चलने की आप पूरी कोशिश करते हैं। कभी ऐसा ही कोई बहुत मजबूरी हो, बहुत अर्जेंसी हो तो ही आपका टाइम का मिसमैनेजमेंट हो जाता है, अदरवाइज़ आप टाइम के पक्के हैं कि मतलब अपने लिए पूरा एक चार्ट बना के चलते होंगे कि मुझे एक कहते हैं ना टाइम टेबल बना के पूरी योजना के साथ ऐसे आप चलते होंगे। और आपने इतना, और ये जो मैं डिसिप्लिन की बात कर रही हूँ ना, ये वही कर सकता है जो एक स्पिरिचुअल सीकर है, जो कहीं ना कहीं अपने आप को
अच्छा और अच्छा, दिन ब दिन और अच्छा बनाने की कोशिश करता है। मैं उसी इनर स्ट्रेंथ की बात कर रही हूँ। वो जो एफ़र्ट आपने लगाया है ना, अपने आप को डिसिप्लिन में रख के, अपने 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 अंदर के स्पिरिचुअल अपने अंदर स्पिरिचुअल अवेकनिंग करके, वो सब जो आपने किया है ना, उसकी वजह से आपकी लाइफ में सूर्योदय हुआ है। सूर्योदय हुआ है। और आप ना कि सिर्फ अपनी लाइफ, बट जहाँ पर भी आप प्रेजेंट होंगे ना, आपसे दूसरे लोगों को कुछ अच्छा ही मिलेगा। आपकी प्रेजेंस, क्योंकि आप एक सूर्य की तरह चमक रहे हैं, तो आपकी जो प्रेजेंस है ना, वो दूसरों को लाइट ही देगी। आपका लाइट दूसरे भी फील कर पाएंगे। इस तरह की आपकी एनर्जी मुझे दिख रही है। और आपने अपने लाइफ में हमेशा इतने अच्छे तरीके से हर चीज़ को यूज़ किया है, चाहे वो टाइम हो, चाहे वो रिसोर्सेज हो, चाहे वो पीपल अराउंड यू हो। आपने सबके साथ एक बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट सब चीज़ को दिया है। और इस वजह से आप द एम्प्रेस की एनर्जी में चले जाएंगे बहुत जल्दी। एक एम्प्रेस कैसी होती है? एक एम्प्रेस होती है जब वो पूरा एकदम व्यवस्था होता है ना, एक लॉ एंड ऑर्डर पूरा इस्टेब्लिश कर देती है, तो वो रिलैक्स मोड पे होती है, क्योंकि उसने लॉ एंड ऑर्डर पूरा इस्टेब्लिश कर दिया है। तो इस तरीके की आपकी लाइफ होगी जब आप देखेंगी कि आप हर चीज़ जो है सेटअप हो चुका है। आपने जो भी रूल्स खुद के लिए बनाए, खुद फॉलो किया, और दूसरों को भी इंस्पायर किया, सब कुछ एकदम। तो थोड़ा सा आपको रिलैक्सेशन की भी आपको फीलिंग आने वाली है। यू नो, दिस इज़ योर फ्यूचर। डेफिनेटली यू विल फील लाइक दैट। थोड़ा सा आप रिलैक्सेशन मोड पे जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने काफ़ी मेहनत की है। आपने काफ़ी मेहनत की है अपने आप को और अच्छा दिन प्रतिदिन बनाने की। और अपने साथ साथ आपको चाहे पता चले ना पता चले, जो दूसरे लोग हैं ना, वो भी आपसे सीखते हैं, इंस्पायर होते हैं। तो इस वजह से जो ये मजिशियन का कार्ड है ना, ये मुझे दिखा रहा है जैसे मजिशियन जो होता है उसके पास हर तरह का रिसोर्स होता है। वो जब जो यूज़ करना चाहे, उसके पास पेंटिकल्स की एनर्जी भी है, कप्स की एनर्जी भी है, उसके पास स्वॉर्ड की एनर्जी भी है, वंड्स की एनर्जी भी है, सब कुछ है उसके पास। और उसने ये जो इन्फिनिटी का साइन है ना इस पर्सन के ऊपर, इसने ये दिखाता है कि इसने अपने आप को पूरा अवेकन्ड कर लिया है। और ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों के यूज़ पे इसका कंट्रोल है। कुछ भी इसके कंट्रोल से बाहर नहीं है। होता है ना, जो एक राजा होता है ना, वो राजा, एक अच्छा राजा कैसा होता है कि उसके पास प्रजा भी होती है, उसके पास धन भी होता है, सारे रिसोर्सेज भी होते हैं, हथियार भी होता है, वेपन भी होता है, इंटेलेक्ट भी होता है, सब कुछ होता है। सबसे पहले तो उसके पास पावर ऑफ पीपल होती है, लोग होते हैं उसके अंडर, प्रजा होती है उसके अंडर। लेकिन वो एक मजिशियन जैसा, इस कार्ड में जो मजिशियन है ना, उसको पता होता है कि किस चीज़ के साथ कैसा ट्रीटमेंट करना है, किस व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना है, और कैसे रिसोर्सेज को यूज़ करना है। और जो इन सब चीज़ों को अच्छे से यूज़ कर लेना, वही एक्चुअल रूलर है, वही एक्चुअल में किंग होता है। और पता है, रिसोर्स होना ये बड़ी बात नहीं है। रिसोर्स होना अच्छी बात है, बट ज़्यादा बड़ी बात क्या है, उसको अच्छे से यूज़ करना। और यहाँ पर जो ये द मजिशियन का कार्ड है ना, वो यही दिखा रहा है कि आपकी जो एनर्जी है ना, वो आप इस योग्य हो कि आप हर रिसोर्सेज का, चाहे वो रिसोर्सेज इन फॉर्म ऑफ पीपल हो, चाहे रिसोर्सेज इन फॉर्म ऑफ वेल्थ हो, रिसोर्सेज इन फॉर्म ऑफ वेपन हो, रिसोर्सेज इन फॉर्म ऑफ एनीथिंग, यू नो हाउ टू यूज़ देम वाइजली। दिस आई कैन से, राइट। एंड जैसा कि मैंने कहा कि द सन का कार्ड आ गया है, तो सूर्योदय हो चुका है आपकी लाइफ में। और अगर अभी तक आपको लग रहा होगा कि अरे कहाँ सूर्योदय, मुझे ये दुख है, तो आई कैन अश्योर यू कि आपकी लाइफ में अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं अंधकार के, और बहुत जल्दी सन का कार्ड आ चुका है, मतलब कि अब अंधकार ख़त्म होने का समय आ चुका है। और अगर आप अपनी लाइफ में ऑलरेडी ठीक ठाक कर रहे हैं, तो आई एम श्योर कि आप अपने आप को आपने इतना एनहांस किया है, अपने स्पिरिचुअली इतना एनहांस किया है, आपने अपने आप को मेंटली इतना एनहांस किया है, इतना स्ट्रेंथन किया है कि आपकी लाइफ में बहुत ही तरक्की, बहुत अपॉर्चुनिटीज़, ब्राइटनेस, सक्सेस,
प्रोग्रेस, ये सब मैं आता हुआ देख रही हूँ। एम्प्रेस का कार्ड मुझे बता रहा है बहुत जल्दी आपने इतनी मेहनत की है ना कि आप अब सब कुछ सेटअप करके रिलैक्सेशन मोड में आप जाओगे, और बस जैसे होता है ना वो बस रूल्स बना करके सब कुछ लॉ एंड ऑर्डर इस्टेब्लिश करके, जैसा मैंने कहा वो रिलैक्सेशन मोड पे होती है। तो आप भी अपनी लाइफ में देखोगे कि मैंने सब कुछ सेट कर लिया है और अब मैं थोड़ा सा आराम कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो इस तरह की। लेकिन नाइट ऑफ वंड्स का कार्ड भी आया है और वो ये बता रहा है कि आप जो भी आपने अपने ऊपर मेहनत की है उस मेहनत को कंटिन्यू रखिए एकदम, मतलब कुछ छोड़ना नहीं है, क्योंकि जो भी आपने एफ़र्ट्स लगाए हैं ना वो सारे एफ़र्ट्स बहुत ही वो ट्रू एफ़र्ट्स हैं, वो पॉजिटिव एफ़र्ट्स हैं, वो अच्छे एफ़र्ट्स हैं और उनको आपको कंटिन्यू रखना है, क्योंकि नाइट ऑफ वंड्स का कार्ड आया है। और नाइट ऑफ वंड्स का कार्ड यही बताता है कि एक नाइट की तरह, एक सोल्जर की तरह, जैसे इस नाइट ने अपने हाथ में वंड को पकड़ा हुआ है ना, मतलब, और ये हॉर्स राइडिंग करता हुआ आगे बढ़ रहा है, मतलब जो भी एक्शन ये ले रहा है उसको, जो भी एक्शन फॉर द सक्सेस वो ले रहा है उसको लेते रहना है, उसको मेहनत करते रहना है। ओके, सो नाइट ऑफ वंड्स का कार्ड आपको ये मैसेज दे रहा है। और जो द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, ये तो मतलब ये आपकी ओवरऑल जो एक डिवाइन आपका एक आपकी एनर्जी में जो ओवरऑल डिविनिटी है ये उसको दिखाता है। आप जो लोग भी मुझको सुन रहे हैं, आप बहुत ही स्पिरिचुअल हैं, बहुत एनलाइटेंड हैं फॉर श्योर। ऐसे लोग हैं जो अपने इनर स्ट्रेंथ को दिन ब दिन बढ़ाने के लिए मेहनत करते हैं, जो स्पिरिचुअलिटी की इम्पोर्टेंस को समझते हैं। स्पिरिचुअलिटी से मेरा मतलब कोई ऐसा नहीं है कि कोई मतलब बैठ के घंटों मंदिर में पूजा करना, इससे मेरा मतलब वो नहीं है। मेरा मतलब है कि आप ट्रू सेंस में आप स्पिरिचुअल ग्रोथ में लगे हैं, मतलब अपने आप को अपनी स्पिरिट को प्योर करने में लगे हैं। स्पिरिट प्योर कैसे होती है? हर मतलब प्योर व्हेन यू डिसाइड टू परफॉर्म ओनली गुड, ओनली डू गुड डीड्स, से गुड थिंग्स, थिंक गुड, जब आप अपने आप के लिए ये रूल्स सेट कर लेते हैं कि भाई मैं हमेशा आई विल डू गुड, आई विल थिंक गुड, आई विल स्पीक गुड, आई विल सी गुड, जब आप अपने लिए ये इंस्ट्रक्शंस जो हैं ये इसको पक्का कर लेते हैं ना कि मैं इससे डेविएट नहीं करूँगा, और मतलब खुद को अच्छा बनाने के लिए आप हर वो प्योर एक्ट करते हैं, प्योर चीज़ें सोचते हैं। जैसे चैंटिंग करना, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, ऑलवेज चैंटिंग गॉड्स नेम, ये सर्वोत्तम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। जो लोग इसमें लगे हुए हैं ना वो बहुत ही प्योर सोल होते हैं और वो कभी गलत बोल नहीं सकते, जाने अनजाने भी वो गलत बोल नहीं सकते। हाँ, वो गलत बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। अगर कोई वो देख रहे हैं कि उनके सामने कोई बहुत ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो अमर्यादित है, अमर्यादित बोल रहा है, अमर्यादित कर रहा है, तो जो पक्का स्पिरिचुअल पर्सन होगा ना, दैट पर्सन विल बी द फर्स्ट वन टू ऑब्जेक्ट दैट। ओके, मतलब कि वो कभी खुद गलत करते नहीं। जो ट्रूली स्पिरिचुअल होते हैं ना, वो किसी के साथ बुरा व्यवहार करते नहीं और किसी का बुरा व्यवहार वो सहते भी नहीं। तो बहुत पोलाइटली, बहुत अच्छे वे में वो ये बता देते हैं कि भाई ये सारी हरकतें जो हैं ये हमारे साथ नहीं चलेंगी। तो ये जो हाई प्रिस्टेस की जो एनर्जी है ना, वो ये बताता है एकदम। आप समझिए, जिस तरह का ये कार्ड है, जैसा ये नाम है द हाई प्रिस्टेस, मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड और फिज़िकल वर्ल्ड के बीच का एक कनेक्शन, आप इसको समझ सकते हैं। जो फिज़िकल वर्ल्ड में रह करके स्पिरिचुअली एनलाइटेंड होना, दिस इज़ द कनेक्शन। और जब एक बार पर्सन स्पिरिचुअली एनलाइटेंड हो जाता है, अवेकन्ड हो जाता है, फिर वो क्या करता है, क्योंकि वो इस फिज़िकल वर्ल्ड में है, तो फिर वो अपने नॉलेज के थ्रू, अपनी अवेकनिंग के थ्रू, फिर वो अपना जहाँ पर वो पर्सन है, फिर उस जगह को भी वो पावन करने लगता है, उसका प्रेजेंस ही। तो वो एक कनेक्शन हो गया। और जहाँ पर भी ऐसा पर्सन है, डेफिनेटली उसका जो इन्फ्लुएंस है वो दूसरे लोगों पर भी पड़ता है, और उसके अंदर की जो अच्छाइयाँ हैं
वो उसके प्रेजेंस में उसके इर्द गिर्द फैलती हैं। और जो फिज़िकल वर्ल्ड है जहाँ पर वो व्यक्ति प्रेजेंट है, वो दैट फिज़िकल वर्ल्ड वो धीरे धीरे वो गॉडली वर्ल्ड बनने लग जाता है, ऑफ कोर्स, बिकॉज गॉडली वर्च्यूज़ होते हैं इस पर्सन के, तो वो वर्ल्ड भी जो है वो एरिया, वो इतना जो जगह है ना जहाँ पर ये पर्सन होगा, वो भी डिवाइन होने लग जाएगा। और वैसे भी द हाई प्रिस्टेस का कार्ड ये एक डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है, एक प्योर, एकदम प्योरेस्ट फॉर्म, and as I said, connection between the spiritual world and the physical world. Okay, and very enlightened person, very enlightened, spiritually awakened person, इस तरह की एनर्जी। कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं, मतलब मैं चाहे पास्ट की एनर्जी देखूँ उसमें भी अच्छा ही अच्छा है, चाहे प्रेजेंट की एनर्जी देखूँ उसमें भी अच्छा है। ओके, लाइक द मजिशियन का कार्ड, आपके पास्ट, रिसेंट पास्ट की एनर्जी मजिशियन का कार्ड, आपके प्रेजेंट की एनर्जी द सन, एंड देन आपके फ्यूचर की एनर्जी द एम्प्रेस। और आपके लिए मैसेज बस इतना है, जो कि मैं नाइट ऑफ वंड्स का कार्ड मुझे जो मैसेज दे रहा है कि आप जो भी अपने अच्छे एफर्ट्स जो आप कर रहे हैं, जो आप करते आ रहे हैं, उनको करते रहिए। और ये हाई प्रीस्टेस की जो ये ओवरऑल एनर्जी आई है ना, ये मतलब आज का जो रीडिंग है ना, बहुत स्पिरिचुअल रीडिंग हो गया। ये जितने भी मेरे लिसनर्स हैं, आई एम श्योर कि वो बहुत ही स्पिरिचुअल हैं। और यहाँ पर मैं जब स्पिरिचुअल वर्ड का यूज़ कर रही हूँ, तो मेरा मतलब जो रिचुअल्स एंड ट्रेडिशंस वाला पूजा पाठ नहीं, मेरा मतलब जो अपने, जिनकी स्पिरिट जो है ना वो हमेशा गॉड में एकदम मर्ज्ड है, जिनका जो सोल है वो हमेशा गॉड में ही लीन है, जो काम कर रहे हैं। मान लीजिए कि मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, मे बी दे आर वॉशिंग यूटेंसिल्स बट चैंटिंग गॉड्स नेम, दे आर वॉशिंग क्लोथ्स बट चैंटिंग गॉड्स नेम, और दे आर कुकिंग बट चैंटिंग गॉड्स नेम इन द माइंड, इस तरह का कुछ, दे लिव इन गॉड, इस तरह का एनर्जी पूरा बहुत स्पिरिचुअल जो है ये रीडिंग हो गई है। तो ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी, गॉड ब्लेस यू।